اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پام مسٹر گفتار۔ یہ میرے بہت پیارے دوست ہیں، آج ہم ان کا پام ریڈ کریں گے۔ انگوٹھے کا فرسٹ فور ول پاور کا بتاتا ہے، تو ماشاءاللہ ول پاور ان کی بہت زبردست ہے۔ کسی بھی کام کا ارادہ کریں گے، 100% اپنے کام کو مکمل کریں گے، اپنے کام کو ادھورا نہیں چھوڑیں گے۔ سیکنڈ فور ہوتا ہے آپ کی پلاننگ کا، سوجھ بوجھ کا، لاجک کا۔ تو یہ ہر کام بڑی پلاننگ کے ساتھ کریں گے، بڑی دور اندیشی کے ساتھ کام لیں گے، بڑی زبردست طریقے سے اپنے کام کو پلان کریں گے اور پھر اس کو کمپلیٹ بھی کریں گے۔ یعنی ول پاور اور پلاننگ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو 100% یہ جو بھی پلان کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا۔ یہاں پر ایک لائن نظر آ رہی ہے اور اس میں اس طریقے سے جزیرہ سا بھی بن رہا ہے۔ تو زندگی میں اسٹرگل، مشکلات، ہرڈلز ان کی زندگی میں بہت آئیں گے، پرابلم بھی یہ زندگی میں کافی دیکھیں گے۔ اب اگر یہاں پہ دیکھیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ایک آنکھ بنتی ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت ان کے انگوٹھے پہ یہ آنکھ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ آنکھ جو ہوتی ہے انگوٹھے پہ، یہ آپ کی سکس سینس کا بتاتی ہے۔ آپ کی سکس سینس بڑی کمال کی ہوگی، فیس ریڈنگ آپ ایسے لوگ بڑی اچھی کر لیتے ہیں، چھٹی ان لوگوں کی بڑی تیز ہوتی ہے اور بہت ساری باتوں کا ان کو وقت سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، خطروں کو یہ وقت سے پہلے بھانپ لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہو یا کچھ برا ہونے والا ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوئی اچھا خواب آ جائے گا، کوئی برا خواب آ جائے گا، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اچھا ہونے والا ہے یا برا ہونے والا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو مجھے یہاں پہ کراس کا سائن بھی نظر آیا ہے۔ تو کراس جو ہوتا ہے یہ، اور یہاں پہ یہ اس طریقے سے اگر جزیرہ بن رہا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ یہ پلان کریں گے اور منصوبے بہت بنائیں گے، لیکن وہ منصوبے ناکام بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ یعنی کہ پلاننگ بہت کریں گے لیکن جس قدر یہ پلاننگ کریں گے کہیں نہ کہیں سے ان کی پلاننگ جو ہے وہ خراب بھی ہوگی۔ یہ ان کا اندرونی منگل ہے، اندرونی منگل کا اتنا ایریا ہوتا ہے، یہ سمجھ لیں آپ، یہ اندرونی مریخ ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ لائنیں نیچے کی طرف گر رہی ہیں۔ جب دماغ کی لائن کا کنیکشن مریخ مثبت کے ساتھ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں غصہ بڑھ جاتا ہے، آپ کے اندر ایگو بڑھتی ہے، غصہ بڑھتا ہے اور آپ تھوڑے سے جذباتی ہوتے ہیں، یہ چیز آتی ہے آپ کے اندر۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ اس طریقے سے ڈاٹ بن رہے ہیں، تو تقریباً 2 بیٹے 2 بیٹیاں، زیادہ سے زیادہ 3-4 بچے ان کے ہاتھ میں شو ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد ضرور دے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو کچھ ایکول اسکوائر کے سائن بھی اس طریقے سے نظر آئیں گے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ جب یہ اس طریقے سے اسکوائر کے سائن بنتے ہیں تو ایسا بندہ جو ہوتا ہے وہ زندگی میں کامیابیاں ضرور حاصل کرتا ہے اور ایسے لوگ پراپرٹی بنانے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں جتنے یہاں پہ بہترین بہت ہی ایکول اسکوائر کے سائن بنیں گے نا، اتنی آپ کے پاس پراپرٹی زبردست آتی ہے۔ لیکن اگر یہ اسکوائر سائن ٹوٹے پھوٹے ہوں تو پھر اس لحاظ سے آپ کوشش تو بہت کرتے ہیں کہ آپ پراپرٹی بنائیں اور آپ اپنا بینک بیلنس بنائیں، لیکن اس میں پھر آپ کو زیادہ کامیابیاں نہیں ملتی۔ تو اس میں ان کے کچھ اسکوائر سائن بن رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ یہ پراپرٹی ضرور بنا لیں گے۔ اس کے علاوہ وینس ماؤنٹ جو ہے وہ ان کا بہت زیادہ ابھرا ہوا بھی نہیں ہے، بہت زیادہ دبا ہوا بھی نہیں ہے، نارمل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ روپیہ پیسہ ان کے پاس اچھا آئے گا اور زندگی میں روپے پیسے کی کمی نہیں ان کو ہوگی۔ اب اگر ہم ان کے مون ماؤنٹ کی بات کریں تو یہ ہوتا ہے آپ کا مون کا ایریا، چاند کا ابھار، یہ سمجھ لیں یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ چاند کا ابھار ہے۔ اب اس چاند کے ابھار پر اگر یہ آپ کو اس طریقے سے لائنیں یہ والی نظر آئیں تو یہ ٹریول لائنز ہوتی ہیں، سفر کی لکیریں ہوتی ہیں۔ اور اگر ان کا جوپیٹر کی طرف رخ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایجوکیشن کے سلسلے میں بھی بیرون ملک جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کسی بھی ان کے روزگار کے سلسلے میں، کسی بھی سلسلے میں وزٹ کے طور پر بھی آپ جا سکتے ہیں ایجوکیشن بیس پہ، یا ویسے جو
मोटिवेशनल स्पीकर लोग होते हैं जो बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, तो उनके हाथ में ये सफ़र की लाइनें इस तरीके से देखी जाती हैं जो कि जिनका रुख जुपिटर माउंट की तरफ होता है। ये आप समझ लें, ये शहादत की उंगली का जो माउंट होता है, ठीक है, उसको हम जुपिटर माउंट बोलते हैं। अब अगर हम ज़िंदगी की लाइन को बगौर देखें तो यहाँ पे यहाँ तक ज़िंदगी की लाइन, दिमाग की लाइन के साथ मिक्स है और डिस्टर्ब है। जब ये डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा हो और ज़िंदगी की लाइन यहाँ तक मिली हुई हो दिमाग की लकीर के साथ, तो जितना ये फासला ज़्यादा होगा इतनी आपके अंदर सेंसिटिविटी ज़्यादा आएगी। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, बहुत ज़्यादा हसास होंगे, कोई भी टेंशन आ जाएगी वो आपके दिलो दिमाग से निकलेगी नहीं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या सीन बन रहा है जिसको बड़े गौर से हम देखेंगे। जुपिटर माउंट है ये। अब जुपिटर माउंट पे एक स्क्वायर का साइन ये बन रहा है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो जब जुपिटर माउंट पर ये खड़ी लाइनें हों या इस तरीके से स्क्वायर के साइन बने, तो स्क्वायर हमेशा जुपिटर पे आपको प्रॉपर्टी देता है, दौलत देता है ज़िंदगी में, और ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये हमेशा आपको कामयाबियाँ देती हैं। या तो आपकी ज़बरदस्त जॉब हो जाती है या आप अपना कोई बिजनेस बनाने में कामयाब हो जाती हैं, ये इस चीज़ की लाइनें हैं। तो माशाल्लाह साहिब इल्म है जी, जुपिटर माउंट आपका जब बड़ा होगा, खूबसूरत होगा, उभरा हुआ होगा, तो इतनी आपकी ज़िंदगी बेहतरीन होती है। तो आप जुपिटर माउंट को अगर हाफ हिस्सों में तकसीम करें तो यहाँ से ये दबा हुआ है थोड़ा, तो इसका मतलब ये हो कि शुरू की ज़िंदगी में इनको मुश्किलात, स्ट्रगल इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आएगी। कम से कम ज़िंदगी के पहले जो 30-35 साल है ना, बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद फिर ये इन प्रॉब्लम से, इन स्ट्रगल से बाहर निकलेंगे। और इस चीज़ की जो गवाही है वो ये लाइफ लाइन भी दे रही है। जब आपकी लाइफ लाइन पे इतने ज़्यादा कट हो ना, राहु लाइनें इतनी काट रही हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ज़िंदगी में आपको दुख, तकलीफ़ें, टेंशनें बाज़ दफ़ा अपने रिश्तों से मिलती हैं, गैरों से भी मिलती हैं, अपनों से भी दुख मिलते हैं, अपनों से भी धोखे मिलते हैं, और आपके अपने ही आपकी ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा रुकावटें खड़ी करते हैं, प्रॉब्लम पैदा करते हैं। यहाँ पर अगर कोई राहु लाइन अच्छा, अगर ज़िंदगी की लाइन के साथ छोटी-छोटी राहु लाइनें हो ना, तो वो छोटी-छोटी टेंशनें होती हैं, इनके उनसे कोई आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा आप डैमेज नहीं होते। बस वक़्ती तौर पर कोई किसी भी आपने की वजह से आपकी ज़िंदगी में आपको एक ज़हनी टेंशन मिलती है। लेकिन वही लाइन जब आगे बढ़ के किस्मत की लाइन को काट दे, जब किस्मत की लाइन को काट दिया तो आपका रुपए पैसे का नुकसान होता है, इनके आपको कैरियर को नुकसान पहुँचता है। जब ये दिमाग की लकीर को काटती है तो आपको ज़हनी टेंशन भी उस वक़्त मिलती है और शदीद डिप्रेशन में आप जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है आपका। और जब ये दिल की लाइन को भी काट देती है तो फिर दिली तौर पर भी आपको बहुत ज़्यादा अज़ियत होती है, बुरे तरीके से आपका दिल भी टूटता है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब अगर ज़िंदगी की लकीर के साथ हम गार्डियन एंजल लाइन को भी देखें तो गार्डियन एंजल लाइन भी हमें इनके हाथ में शो हो रही है। 2 गार्डियन एंजल लाइन हमें इनके हाथ में यूँ शो हो रही हैं। तो गार्डियन एंजल लाइन जो होती है ये ज़िंदगी की हिफाज़त करने वाली लाइनें होती हैं, कि जहाँ कहीं आपकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा तो ये ज़िंदगी की हिफाज़त करती हैं, इंसान की जान नहीं जाती। रोड एक्सीडेंट हो या कोई बड़ी बीमारी आए तो अल्लाह ताला ऐसे इंसानों को शिफा देता है। ये जो अल्लाह ताला की स्पेशल ब्लेसिंग होती है ना, ऐसे लोगों को हासिल होती है। ऐसे लोग किस्मत के धनी होते हैं, बहादुर भी होते हैं, डरपोक नहीं होते, और ऐसे लोगों को जिनके हाथ में ये गार्डियन एंजल लाइन होती है, इनको मैंने बहादुर देखा है। ये फितरतन बहादुर लोगों के हाथ में देखी गई है, जो अपनी ज़िंदगी खतरों में डाल देते हैं और ज़िंदगी की परवाह बिल्कुल नहीं करते। इसके अलावा सफ़र ये करेंगे। अब अगर हम इनकी दिमाग की लकीर को देखें तो दिमाग की लकीर भी शुरू की ज़िंदगी का तो प्रॉब्लम का ही बता रही है। यहाँ तक तकरीबन 27, 28, 30 साल की उम्र तक प्रॉब्लम रहेंगी, आगे फिर दिमाग की लाइन बेहतर हो जाती है। तो अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो 40-50 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में मेंटली स्ट्रेस चलता है, और यहाँ भी ये दिल की लाइन भी यही बता रही है कि दिल को तोड़ा जाएगा, दिल को दुख मिलेंगे, और ये भी तकरीबन दिल की लाइन भी यही बता रही है कि तकरीबन बचपन से लेकर 30-35 साल की उम्र तक दिल में भी कोई ज़्यादा सुकून नहीं होगा, कुछ ज़हनी टेंशनें होंगी, कुछ प्रॉब्लम होंगे, और जिसकी वजह से दिल भी इनका टूटेगा, दिल भी इनका दुखाया जाएगा, और इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम मसले भी बहुत होंगे।
अच्छा जी, मज़ीद हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखें तो जो भी लाइन किस्मत की लाइन को काट दे उसको हम अच्छा नहीं मानते। अब देखिए यहाँ पर राहु लाइनें देख लेते हैं कितनी हैं। यहाँ पे एक राहु लाइनें काट है, यहाँ पे काट है, यहाँ पे काट है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो अब ये टाइमिंग अगर आप निकालेंगे तो तकरीबन 24-25 साल की उम्र में भी लॉस होगा, 26 साल की उम्र में भी, फिर 28 साल की उम्र में भी, फिर 30 से 32 साल की उम्र में भी, फिर 35 से 40 साल की उम्र में भी। 35 साल की उम्र में भी ठीक ठाक प्रॉब्लम आएंगे और तकरीबन 30-32 पे भी जाके इनकी ज़िंदगी में क्राइसिस आएंगे और ठीक ठाक क्राइसिस आएंगे। ये छोटी छोटी टेंशनें नहीं होती, ठीक ठाक इसमें बंदे का रुपये पैसे का भी नुकसान होता है और अच्छी खासी प्रॉब्लम ज़िंदगी में आती हैं। और जब आपके ये होता है आपका राहु का एरिया, इस पॉइंट को भी आप समझ लें। देखिए राहु क्या है, राहु का ये एरिया सारा, ये राहु है सारा। तो राहु की एज जो है ये कहाँ से शुरू हो जाती है, तकरीबन 22-23 साल की उम्र से राहु के दौर में आप दाखिल हो जाते हैं और ये टाइम चलता है तकरीबन 45 साल की उम्र तक, 40-45 साल की उम्र तक। अब 22-23 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक जिन लोगों ने अपनी जिंदगी बनानी होती है वो बना लेते हैं। 20-22 साल की उम्र तक आप जबरदस्त एजुकेशन भी हासिल कर चुके होते हैं और उसके बाद आप कोई जॉब तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये जो टाइम होता है इसमें इंसान बिजनेस भी करता है, इंसान आगे भी बढ़ता है। हाँ, एक चीज आप याद रखिए, ये मैंने आपको राहु का एरिया तो बता दिया है, लेकिन किस इंसान का राहु अच्छा है या किस इंसान का राहु बुरा है वो हमें कैसे पता चलेगा। ये आप एक नई चीज सीख लें। देखिए आप अपनी हथेली को ऐसे सामने फैलाएं, सामने रखें, इसमें थोड़े से पानी आप डालें, तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ये यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा बनता है। ये गड्ढा बहुत ज्यादा गहरा भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल आपकी सीधी प्लेन हथेली भी नहीं होनी चाहिए। अगर बिल्कुल प्लेन हथेली होगी तब भी आपकी जिंदगी में जो है ना वो प्रॉब्लम आ जाएंगी। अब ये गड्ढा बनता कैसे है ये मैं आपको समझा देता हूँ, इस चीज को आप समझ लें। देखिए आपका ये वीनस माउंट है, ये उभरा हुआ होता है, इसके उभरा होने से और इस सारे एरिए के उभरा हुआ होने से, ठीक है, ये भी उभरा हुआ हिस्सा होगा, ये भी आपका उभरा हुआ हिस्सा होगा। तो ये जो बीच वाला हिस्सा होगा ना ये नीचे दबा हुआ होगा, यहाँ पे गड़ा बनेगा। तो जो राहु का एरिया इसमें अगर एक मुनासिब हाथ तक गड़ा बने तो वो राहु आपका बड़ा बेहतरीन होता है। और राहु का काम क्या होता है, राहु आपको जमीन से उठा के आसमान पर भी बिठा देता है, आपको कखपति से लखपति भी बना देता है, करोड़पति भी बना देता है। राहु का काम है कि रातों रात आपकी जिंदगी को बदल के रख देता है। और यही राहु जब आपका खराब होता है तो आप करोड़पति होते हैं, तो आप कखपति बन जाते हैं। यानी कि एक रात आप सोते हैं तो आप करोड़पति होते हैं और दूसरी सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास कख भी नहीं होता, 1 रुपया भी आपके पास नहीं बचता। तो राहु का ये काम है। अब इसी राहु के अच्छा होने की जो सबसे पहली जो निशानी ये होती है, ये मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पे एक मुनासिब सा गड्ढा होना चाहिए और उसके बाद आपकी जो किस्मत की लाइन है वो बड़ी शार्प होनी चाहिए। और ये जितनी ये इन लाइनों से बच जाए ना, ये लाइनें नहीं होनी चाहिए। ये लाइनें आपकी जिंदगी में दुख देती हैं, ये राहु लाइनें होती हैं। ये जो एरिया होता है मरीख वाला, यहां से जो निकलेंगी लाइनें वो मरीख की लाइनें होंगी, वो गुस्सा एग्रेशन आपके अंदर पैदा करेंगी। और ये जो नीचे वीनस का एरिया होता है यहां से जो लाइनें गुजरेंगी ये आपकी फैमिली वाले आपकी जिंदगी में जहर घोलते हैं। और जिन लोगों को ये वहम होता है कि हमारी फैमिली वाले हम पर कोई काला जादू या तावीज वगैरह करवा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उनके हाथ में आपको ये लाइनें बहुत ज्यादा नजर आएंगी। अगर यहाँ पे आपको गुच्छा सा नजर आता है ना इन लाइनों का, तो बिल्कुल आपको फिर किसी अच्छे इनके जो ईमानदार किस्म का इंसान हो, जो साहिब इल्म हो, तो उससे अपना जो है ना वो अपना रूहानी इलाज जरूर करवाना चाहिए। क्योंकि ये तकरीबन 50 से 60% चांस होता है कि ऐसे बंदे पर कोई ना कोई अमल कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से ना सिर्फ उसका जो बिजनेस है वो तबाह होता है, और बाज़ दफ़ा अगर लड़की हो या लड़का हो उसकी शादीशुदा जिंदगी भी तबाह कर दी जाती है इन्हीं काले जादू से और तावीज़ात की वजह से, ठीक है। और उसकी बड़ी जो निशानी होती है ये मैं आपको समझा देता हूँ, वो ये वाली जगह होती है, इस जगह पे, यहाँ पे आपको गुच्छा नजर आएगा इस तरीके से।
ये पूरा गुच्छा होता है लाइनों का, बेहंगम। और ये गुच्छा इतना जालिम होता है कि ये जो आपकी किस्मत की लाइन होती है ना, ये इस बेचारी का सत्यानाश हो जाता है, ये टूट फूट जाती है इस जादू के अमल की वजह से। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं होता कि हर बंदे के साथ ये जो मैं बता रहा हूं जादू ही हो, लेकिन आपको एक साइन बता रहा हूं कि ये पावरफुल साइन है जादू का आपके हाथ में, कि आप पर जादू है या नहीं है, तो ये उस चीज का साइन है। तो इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी जिंदगी में भी ये जो राहु लाइनें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो आपको नजर आ रही हैं। तो कम से कम बचपन से लेके 40 साल की उम्र तक तो इनकी जिंदगी में एक बेसुकूनी रहेगी, एक प्रॉब्लम रहेगी। और दूसरी मैं बात कर रहा था कि आपका जो राहु का एरिया है, यहाँ पर अगर किस्मत की लाइन शानदार होगी, टूटी फूटी नहीं होगी, तो जितनी मर्जी मुसीबतें आएंगी आप उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनके हाथ में बिजनेस की लाइनें बड़ी अच्छी हैं। तो ये लाइनें जो ऊपर की तरफ उठती हैं ये बिजनेस की लाइनें होती हैं, मरकरी की लाइनें होती हैं। तो यहाँ पर ये देखें बड़ा खूबसूरत इनका मनी ट्राइंगल बन रहा है, बल्कि डबल ट्रिपल मनी ट्राइंगल बन रहा है। तो रुपए पैसे की इनको कमी बिल्कुल कोई नहीं होगी, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। जिंदगी की लाइन को देखें तो शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किल, तकरीबन 27, 28, 30 साल की उम्र तक भी प्रॉब्लम है, फिर 30, 35 पे भी, 40 पे भी एक बड़ा नुकसान होगा, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, और फिर 50, 60 पे जाके फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी थोड़ी थोड़ी। तो इस तरीके से हम ज़िंदगी किस्मत की लाइन को भी साथ मिला के पढ़ते हैं, और फिर ज़िंदगी की लाइन को भी साथ मिला के पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखें तो सन माउंट पर इतना बड़ा क्रॉस का साइन, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। यहाँ पे जजीरा भी बन रहा है, तो बदनामी का सामना भी इनको एक दफ़ा करना पड़ेगा, और रुपए पैसे का भी लॉस होगा। अगर ये गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे या कोई भी जॉब कर रहे होंगे तो इनकी जॉब भी जा सकती है, क्योंकि जब आपके हाथ में ये वाला क्रॉस का साइन आ जाता है ना, तो आप किसी ना किसी स्कैंडल का शिकार जरूर होते हैं। कोई ना कोई आप पर केस बन जाता है, या कोई आप की जॉब को खतरा होता है, या आपका बिजनेस तबाह होता है। तो ये अच्छा साइन नहीं है यहाँ पे। अब किस्मत की जो लकीर है इसको थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे बड़ा प्यारा साइन बना हुआ है, एक ट्राइंगल बनी हुई है, फिर यहाँ से किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ उठ रही है इस तरीके से, और फिर यहाँ से ये इस तरीके से लाइनें, और ये फिर यहाँ पर एक ट्राइंगल बना है और फिर एक लाइन बनी है। तो इसका मतलब ये कि ओल्ड एज में जाके ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं ये इनको बेतहाशा रुपया पैसा देंगे, बुढ़ापा इनका अच्छा होगा। और यहाँ पर भी स्क्वायर का साइन बन रहा है जुपिटर पे, तो यहाँ पर भी इनको ओल्ड एज में इनको दौलत मिलेगी, रुपया पैसा मिलेगा। लेकिन एक लॉस भी इनका जरूर होगा, वो चाहे जिंदगी में पहले इनका हो जाए, राहु करवा दे इनके 40 से 45 साल की उम्र में, या 35 से 40 साल, या 40 से 45 साल की उम्र में, वहां पर भी इनका बड़ा लॉस हो सकता है। और ओल्ड एज में भी यहाँ पर भी जजीरा बन रहे, तो ओल्ड एज में भी 50 से 60 साल की उम्र में भी इनका कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है, इनको मोहतात रहने की जरूरत है। बाकी इंशाल्लाह ताला बुढ़ापा इनका बड़ा अच्छा होगा। और ये सडन वेल्थ जो इंसान को मिलनी होती है, ये उसका भी ट्राइंगल होता है। अगर आपके यहाँ पर दो ट्राइंगल बने सैटर्न पे, और यहाँ पर इस तरीके से लाइनें बने, तो ये इन्वेस्टमेंट की भी होती हैं। आपको अपने नॉलेज की वजह से, अपनी ज़बरदस्त एजुकेशन की वजह से सैटर्न से जो लाइनें जुपिटर की तरफ जाती हैं, तो ये आपके नॉलेज की वजह से, जो आप रुपया पैसा कमाते हैं अपनी सूझबूझ की वजह से, अपने अच्छे खासे नॉलेज की वजह से, ये उस चीज़ की लाइनें होती हैं। तो 50 के बाद यहाँ पर सन लाइन बड़ी बेहतरीन हो जाती है, तो जो भी लॉस होगा 50 तक इनका लॉस हो जाएगा, 56, 57 तक लॉस हो जाएगा, और उसके बाद आगे फिर किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन, शोहरत की लाइन बड़ी बेहतरीन है, और यहाँ पर किस्मत की लाइन भी अच्छी है। तो इंशाल्लाह ताला बुढ़ापा इनका ज़बरदस्त होगा। और ख़त मरकरी, ये मरकरी का ख़त, और यहाँ पर इतनी खूबसूरत गहरी लाइन, ये इनके बहुत ज़्यादा साहिब इल्म होने का बताती है कि इनके पास नॉलेज बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ी लॉजिक के साथ, बड़ी दलील के साथ बात करेंगी, और इनके पास ज़बरदस्त नॉलेज है। नॉलेज की कमी कोई नहीं है, क्योंकि जब आपका, देखिए इनका मरकरी कितना खूबसूरत माउंट है, तो जब मरकरी आपका बड़ा बेहतरीन होता है तो आप इंतहा दर्जे के ज़हीन भी होते हैं, आपकी मेमोरी बड़ी शार्प होती है, और आप ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं। और ऐसे लोग गुफ्तगू के बड़े माहिर होते हैं, इनको देखा गया है। जब भी आपकी दिमाग की लकीर को कोई लाइन ऐसे काट देती है, समझ में आई ये बात, तो ये आपको, ये मंगल तक पहुंच जाएगी। ये बैरूनी मंगल है, ये अंदरूनी मंगल है, ये दोनों एक दूसरे के सामने पैरेलल होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप समझ लें, ये अंदरूनी मंगल, ये बैरूनी मंगल, तो अब ये दोनों पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये अंदरूनी मरीख है जी, ये बैरूनी मरीख है। ठीक है,
تو مجھے اصل میں اب وہ ہندی کا بھی یوز میں کر لیتا ہوں، تو زبان پہ اگر آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، اردو کا بھی اور ہندی کا بھی، تو یہ نہیں کہ جناب آپ یہ ہندی کیوں بول رہے ہیں، میں ہوں تو ظاہر ہے مسلمان، لیکن چونکہ یہ علم ہے تو علم اور جو نالج کی اس کی تو کوئی زبان نہیں ہوتی، جیسے کہتے ہیں نا کہ جو ایک فن ہوتا ہے، ایک آرٹ ہوتا ہے، اس کی کوئی لینگویج نہیں ہوتی، ساری جو فن ہوتا ہے وہ یا کوئی نالج ہوتا ہے وہ مذہب سے آزاد ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک مذہب کسی بھی علم پر وہ قبضہ کر کے رکھتا ہے، علم جو ہے وہ ساری دنیا تک پھیلایا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو بھی جس لینگویج پہ آپ کو کنٹرول ہوتا ہے وہ پھر آپ وہ زبان پہ خود خود وہ لفظ آ جاتے ہیں۔ تو مریخ بھی اچھا لگتا ہے، منگل بھی اچھا لگتا ہے، منگل مریخ پلانٹ کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو اندرونی منگل ہے یہ بیرونی منگل ہے، اور یہاں پر اگر دماغ کی لکیر کو کوئی لائن ایسے کاٹ دیتی ہے اور یہ بیرونی منگل تک پہنچ جاتی ہے ایسے کاٹ کے، تو آپ پر زندگی میں کوئی نہ کوئی کیس ضرور بنتا ہے، تھانہ کورٹ کچہری سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی کیس کا سامنا آپ کو ضرور کرنا پڑتا ہے، اسپیشلی جب یہاں پر کراس کا سائن بھی ہو، یہاں پہ ایک جزیرے کا سائن بھی بن رہا ہو، تو پھر تو 100% آپ کا ایک لاس ہونا ہوتا ہے، چاہے وہ اس میں آپ قانونی طور پر پھنستے ہیں یا نہیں پھنستے، لیکن یہ روپے پیسے کا آپ لاس کر دیتے ہیں۔ یہ جناب ہو گیا، اب ان کے ہاتھوں کی شیپ کی بات کر لیں، اسکوائر ہتھیلی ہے تو ایسے لوگ بڑے محنتی ہوتے ہیں، انگوٹھا بھی ماشاءاللہ لمبا ہے تو ایسے لوگ بڑے اصول پرست ہوتے ہیں، اصولوں کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ جوپیٹر فنگر ان کی بڑی زبردست ہے، جوپیٹر ماؤنٹ بھی اچھا ہے تو بڑے صاحب علم ہے۔ سیٹرن فنگر بڑی زبردست ہے تو بڑی بیلنس لائف گزاریں گے۔ سن فنگر بھی بڑی اچھی ہے اور یہ جوپیٹر کے برابر ہے سائز میں، تو بہت ہی بہترین شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، اپنی شخصیت کو بڑا بیلنس لے کے چلتے ہیں، نہ ان کے اندر حکمرانی کی شدید خواہش ہوتی ہے اور نہ ہی نمود و نمائش کی یہ زیادہ شوقین ہوتے ہیں، بہت زیادہ زبردست شخصیت کے مالک ہیں۔ مرکری فنگر ان کی بہت زبردست اچھی لینڈنگ ہے، تو ایسے لوگ بہت زبردست گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ زبان کے اندر تاثیر رکھی ہے کہ یہ دوسروں کے دکھ درد بڑے بہترین طریقے سے بانٹ دیتے ہیں، ان کے اندر ہیلنگس کوالٹی ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ ڈاکٹر ہوں تو ایسے ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہوتی ہے، اگر آپ کی یہاں پر لائنیں ہوں نا تو یہ ہیلنگس کوالٹی کا بتاتی ہے، اگر یہاں پر 3 لائنیں ہوں تو آپ کی یہ پاور اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ ہمیں ان کی شخصیت کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ ماشاءاللہ بڑی بلند شخصیت کے مالک ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے انسان ہیں، اور زندگی میں انہوں نے بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں، دکھ تکلیفیں ٹینشنیں، خیر وہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ تو 3-4 لائنیں بن رہی ہیں تو تقریباً 3 سے 4 بیبی ان کے ہو سکتے ہیں۔ زندگی کی لائن کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ شروع میں بہت زیادہ زندگی کی لائن ڈسٹرب ہے، تو بچپن سے لے کے 20-25 سال کی عمر تک تو بہت زیادہ سٹریس دیکھیں گے، بچپن میں ان کی کوئی زیادہ صحت بھی اچھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ان کی زندگی کی لائن کی بات کریں تو زندگی کی لائن لمبی ہے، 80-90 سال ایج ہوگی، یہاں پر گارڈین اینجل لائن بھی چل رہی ہے، تو یہ زندگی کی حفاظت کرنے والی لائن ہے۔ مون ماؤنٹ پر سفر کی لائنیں بڑی شاندار ہیں، تو بالکل یہ زندگی میں سفر کریں گے، بیرون ملک سفر کریں گے، اور یہ ہوتی ہے ایڈکشن کی لائن۔ یہ اس طریقے سے اگر کوئی لائن مون کی طرف جائے نا ایسے کر کے، تو یہ کسی نہ کسی چیز کا انسان کو عادت ہوتی ہے، کسی نہ کسی چیز کا انسان نشہ کرتا ہے، چاہے وہ چائے پیے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے، کچھ لوگ میوزک سنتے ہیں، کچھ لوگوں کو جو بری عادتیں انسان کے اندر پڑ جاتی ہیں، کئی لوگ ناخن چبانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھ میں آپ کو یہ والی لائن اس طریقے سے نظر آئے، ٹھیک ہے۔ یہ وینس اور کیٹو یہاں سے نکلتی ہیں، اس چیز کو آپ سمجھ لیں، جو لائن کیٹو ماؤنٹ سے نکلے یہاں سے یوں ادھر چلی جائے، یوں بے شک 2 شاخہ ہو جائے، یا یہاں پہ چلی جائے 2 شاخہ ہو جائے، 3 شاخہ ہو جائے، تو یہ آپ کے اندر ایڈکشن یا کسی چیز کا نشہ آپ کے اندر ہو سکتا ہے، کسی چیز کی بری عادت آپ کو پڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ یہ وہ مشغلہ یا شوق کہہ لیں جو انسان اپنی تھکن اتارنے کے لیے، اپنے دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ ظاہر ہے کچھ لوگ جو چائے پیتے ہیں وہ انہیں چائے کا ایک نشہ ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ بہت زیادہ دماغی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ چائے پیتے ہیں۔ میں خود چائے پیتا ہوں، چائے کا مجھے بھی یہ کہہ لیں گے ایک نشہ ہی کہہ لیں، کیونکہ ظاہر ہے میرا ایک دماغی کام ہے، میں نے ہر وقت اپنے برین کا یوز کرنا ہے، ریڈنگ کرنی ہے، ریڈنگ میں میں نے ڈوب کر ریڈنگ کرنی ہوتی ہے، کہ ایک لائن کو باریکی کے ساتھ ریڈ کرنا ہوتا ہے، تو
अच्छा खासा दमाग बाज दफ़ा फटना शुरू हो जाता है, इतना दर्द होता है सर में जब आप मुसलसल काम करते हैं। अब 4-5 हाथ रीड करें ना सही ईमानदारी के साथ, तो दिमाग बिल्कुल आपका जो होता है ना वो दिमाग की दही बन जाती है। तो बात ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि सर आपने एक लाइन ही बतानी है ना, आपने थोड़ा सा हाथ ही पढ़ना है ना, तो आप वैसे ही बता दें, फ्री बता दें। तो बात ये है कि भाई हमारा ये काम है, हमने अपनी जो आपको सर्विस देनी है, जो अल्लाह ताला ने हमें नॉलेज दी है, उसका थोड़ा बहुत तो हदिया हमारा बनता है ना। तो आपका भी हक बनता है कि अगर आप किसी बंदे की से सर्विस ले रहे हैं, आप आपको एक बंदा 2-2.5 घंटे आपके हाथ पर काम करते हैं, आपको हाथ की लाइन स्टडी करके देता है, आपका जायचा बनाता है, तो ज़ाहिर है उसके चार्जेस तो होंगे, वो फ्री वाला काम तो नहीं होगा। तो फ्री वाले तो ज़ाहिर है मेरे पास लाखों लोग दिन में रब्ता करते हैं, तो फ्री वालों के साथ माजरत है। जो लोग फीस पे कर सकते हैं सिर्फ रीडिंग के लिए, वही लोग रब्ता किया करें। और बाकी जो फ्री सीखना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, तो मैं फ्री वालों के लिए बड़ी डिटेल के साथ वीडियो बनाता हूँ, और ये जितना मैं डीपली बताता हूँ ना, मेरे जैसे आपको कोई 1 या 2 पामिस्ट्री नजर आएंगे यूट्यूब पे जो इतनी डिटेल के साथ आपको पामिस्ट्री सिखाएंगे। ये मैं बता रहा था कि ये एडिक्शन की लाइन हो सकती है। यहाँ पे ये इस तरीके से स्क्वायर का साइन कर ले या फिश साइन कर ले, ये मुझे बनता नजर आ रहा है, बिल्कुल बना हुआ है जनाब। अभी पूरी शेप बनी नहीं है लेकिन तकरीबन बनी हुई है इस तरीके से। तो जब किस्मत की लाइन के साथ ये सफ़र की लकीरें हैं, ये सफ़र की लाइनें इनको ज़रूर सफ़र करवाएंगी ज़िंदगी में। और किस्मत की लकीर जब नीचे से 3 शाखा होकर स्टार्ट लेती है, यूं यूं और फिर यूं, तो ऐसे लोगों ने ज़िंदगी में बेतहाशा कामयाबियाँ हासिल करनी होती हैं। फिश साइन इनका बना हुआ है, तो ये फिश जो है ये किस्मत की लाइन के साथ जो जुड़ी हुई होती है, ये आपको ट्रैवल भी करवाती है, आपको नॉलेज भी देती है, और ज़िंदगी में बेइंतहा दौलत भी देती है, रुपया पैसा भी देती है। तो रुपया पैसा इनके पास बहुत आएगा ज़िंदगी में, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। ज़िंदगी की लाइन जब सीधी हो जाती है तो ये थोड़ी सी बंदे के अंदर जल्दबाजी पैदा करती है, तो जल्दबाजी में ये फैसले करेंगे। यहाँ पर किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन जा रही थी, यहाँ से एक लाइन है इसको काटा है, तो अर्ली एज में ही ये कोई काम करेंगे और साथ ही इस लाइन ने काट भी दिया है, तो वो काम कुछ अर्सा इनका चलेगा, साथ ही वो काम खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इनका कोई नुकसान हो जाएगा, छोटा मोटा, बड़ा नुकसान नहीं होगा लेकिन होगा ज़रूर। अब दिमाग की लकीर अगर हम देखें तो दिमाग की लकीर बिल्कुल सीधी है। दिमाग की लाइन जब बिल्कुल सीधी होती है तो ऐसे लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इनके असूलों में लचक कोई नहीं होती। भाई पत्थर पे लकीर है इनकी, बात कह दिया सो कह दिया, अपनी बात से पीछे नहीं हटते, और इनको मनाना, इनको कायल करना बड़ा मुश्किल होता है। इनके जो एक दफ़ा अकीदा बन जाता है, ये बड़े मजबूत ईमान के मालिक होते हैं, अपनी बात से फिरने वाले नहीं होते, और ये अपनी बात में तब्दीली नहीं लाते फिर, यानी कि इनको कायल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एक दफ़ा जो डिसीजन ले लेती हैं फिर उससे भी ये पीछे नहीं हटते, और उसकी निशानी ये होती है कि ऐसे लोगों की दिमाग की सीधी होती है, और इनकी एक बुरी आदत ये भी होती है कि ये दूसरे बंदे का लिहाज भी नहीं करते, यानी कि दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखते। बाज़ दफ़ा ये जो मुंह में आए बोल भी देते हैं, चाहे किसी को अच्छी लगे या बात बुरी लगे, लेकिन बोलते सच हैं। लेकिन सच तो बड़ा कड़वा होता है, आपने खुद देखा होगा। अपने सगे रिश्तों के सामने सच्ची बातें करना आप शुरू कर दें तो कसम खुदा की एक रिश्ता भी आपका अपना नहीं रहेगा। सच बड़ा कड़वा होता है। तो रिश्तों को अगर आपने साथ लेके चल रहे हैं तो इतना ज़्यादा सच्चा होने की ज़रूरत कोई नहीं है। थोड़े से डिप्लोमेटिक हो जाएं, अपनों की गलतियां माफ़ कर दें, और उनकी गलतियां उनके मुंह पर अगर बताना शुरू कर देंगे तब भी आपके ये प्यारे प्यारे रिश्ते नाराज़ हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते ये आपके साथ जुड़े रहें तो इनका दिल ना दुखाएं, इनको साथ लेके चलें। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने वैसे डसने से बाज को नहीं आना होता, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन अल्लाह और रसूल का हुक्म है जी अपने रिश्तों को साथ लेके चलें, तो मैं भी यही कहता हूँ कि अपने रिश्तों को साथ लेके ही चलना चाहिए। और वैसे भी हमारे प्यारे नबी का हुक्म है, जब ये 3 लाइनें ऊपर की तरफ उठती हैं तो इंसान को 3 कामों में अल्लाह ताला कामयाबियां देते हैं। अब दिल की लाइन जो है वो यूं, अब दिल की लाइन को भी स्टडी कर लेना। देखिए यहाँ पर तो इनको प्रॉपर्टी वगैरह मिलेगी, ये कामयाबियाँ, रुपया पैसा, ठीक है, ये तो हमने जुपिटर माउंट पे देख लिया कि इनके पास रुपया पैसा आएगा। अब दिल की लाइन की अगर हम स्टडी करें तो दिल की लाइन यहाँ पे एक ऐसे कट आया है, फिर यहाँ पे कट आ रही है, तो यहाँ पे इनका एक लॉस होगा, यानी कि तकरीबन 27 से लेके 35-40 के दरमियान बहुत बुरे तरीके से इनका दिल टूटेगा, और हो सकता है अपने ही रिश्तों से इनको कोई बहुत बड़ा
नुकसान पहुंचे। ये अपने रिश्तों से जो नुकसान पहुंचता है ये लाइन काट रही है, और इसका जो दर्द है, इसकी जो तकलीफ है, ये हमें इस दिल की लकीर पे यहाँ पे नजर आ रही है। तो इस तरीके से हम मिला के भी वाकयात को पढ़ते हैं कि यार क्या चीज़, अगर जिंदगी की लाइन को कोई लाइन काट रही है, किस्मत की लाइन को काट रही है, इस बंदे का कोई बड़ा नुकसान हो रहा है, तो फिर ज़ाहिर उसका असर दिल पर होगा। तो दिल पे ये नुकसान आपको नजर भी आ रहा है। यहाँ पे आप देखें एक कट सा बना है ये, इस तरीके से। तो जब ये इस तरीके से कट सा बनता है या दबा सा बनता है, तो ये प्रॉब्लम का ही बताता है। अच्छी खासी ज़हनी टेंशनें बनने को मिलती हैं। और इसी तरह जब दिमाग की लकीर पे ये छोटे छोटे इस तरीके से डॉट बनते हैं ना, ये भी शदीद ज़हनी टेंशनों का बताते हैं। ठीक है, तो ज़हनी टेंशनें इनकी ज़िंदगी में रही हैं, और जहाँ तक दिल टूटने की बात है, तो दिल भी इनका तोड़ा जाएगा, और अपने रिश्तों से इनको दुख मिल सकते हैं। और ये इस चीज़ की ये वाली लाइनें हैं। और दिल की लकीर से जब कोई लाइन ये इधर चली जाती है, तो ये बंदे के अंदर मंगल दोष पैदा कर देती है, क्योंकि अब इसकी एक शाख अगर ये होता है आपका अंदरूनी मंगल, यहाँ पर भी लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो इस बंदे के अंदर ईगो, गुस्सा बहुत है। तो जब दिल की लाइन भी ये नीचे की तरफ गिरती है, तो फिर बंदा बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है, जल्दी गुस्से में आता है। और ऐसे इंसान को अपने रिश्तों से कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलता। ऐसे इंसान को सेल्फिश रिश्ते ही ज़्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से ये दिल की लकीर नीचे की तरफ गिरती है। और बाज़ दफ़ा इंसान को जो लाइफ पार्टनर है वो भी अपने लेवल का नहीं मिलता। इनके पर्सनैलिटी के लिहाज से या एजुकेशन के लिहाज से वो थोड़ा सा कमतर होता है। ये चीज़ आमतौर पर देखी गई है। और इसके अलावा इंसान का जो दिल है उसके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। इंसान मायूसी, डिप्रेशन या हर चीज़ नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है। तो इस नेगेटिविटी से आपने बचना है जनाब। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन नीचे से तो बड़ी बेहतरीन गई है, 40 साल की उम्र तक तो बड़ी बेहतरीन है। हालांकि यहाँ पर कुछ नुकसान भी हुए हैं, 30-32 साल की उम्र में भी और 35 साल की उम्र में भी। लेकिन 35 साल की उम्र में जो नुकसान हुआ ना, तो 40 के बाद, ये 40 से 50 के दरमियान यहाँ पर किस्मत की लाइन मध्यम है। लेकिन 40 से 50 साल की उम्र में भी इन्होंने अच्छी खासी स्ट्रगल की है, मेहनत की है, और ज़िंदगी में इनके सर्वाइव किया अपने आप को, बस थोड़ा सा अपने आप को बेहतर किया है, जैसे तैसे करके अपना टाइम पास किया है। फिर इनका जो टाइम शुरू हो रहा है वो हम देखते हैं कि यहाँ पे सन लाइन है, यहाँ पे फिर ये खूबसूरत फिश साइन बना हुआ है, और फिर यहाँ पे ट्राइंगल है, फिर यहाँ पे इस तरीके से। तो ये सन माउंट पर ये फिश का साइन बनना ये बताता है कि रुपया, पैसा, दौलत इनके पास अच्छी खासी आएगी, ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और सैटर्न पे यहाँ पे ये इस तरीके से जजीरा भी बन रहा है, और यहाँ पे कट भी नज़र आया है। तो वो जो मैंने बताया था ना कि 50 से 60 के दरमियान इनका एक लॉस होगा, वो मे भी 55, 56 पे जाके हो जाए, या 47 पे भी जाके हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी 47 पे भी किस्मत की लाइन बड़ी मध्यम है। तो 47 से लेके 55 तक तो ये यकीनन इनका मुश्किल टाइम होगा। 55 के बाद 55 के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकलेंगे, लेकिन अल्लाह करेगा निकल आएंगे। क्यों? उसकी वजह ये है कि आगे फिर इनकी जो किस्मत की लकीर है वो ज़बरदस्त हो जाती है, वो इस तरीके से चलती है, 2 लाइनें चलती हैं, एक लाइन फिर ये चलती है। तो यहाँ भी ये खूबसूरत फिश भी बनी हुई है। तो जब आपके पास सन माउंट पर इतनी खूबसूरत फिश साइन हो, और आपके पास नॉलेज की लाइनें भी हों, दौलत की लाइनें भी हों, जो विरासत में इंसान को हिस्सा मिलना होता है उस चीज़ की लाइनें भी हों, तो ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। जुपिटर माउंट पे जब आपको ये इस तरीके से स्क्वायर का साइन मिल रहा हो या खड़ी लाइनें मिल रही हो, तो ये भी आपको दौलत देती है, रुपया पैसा देती है, ज़िंदगी में आपको कामयाबियाँ मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तकरीबन 33-34 मिनट हो गए हैं। तो अब यहाँ पे इसको क्लोज ही करते हैं। शादी की लाइन यहाँ पे एक नज़र आ रही है, शादी की ठीक होगी, लेकिन जितनी इनकी किस्मत की लकीर थोड़ी थोड़ी हमें डैमेज नज़र आती है। दिल की लाइन पे बड़े सदमात हमें नज़र आ रहे हैं कि इनको सदमे मिलेंगे, दुख मिलेंगे, दुख मिलेंगे। वहाँ पे जितनी मर्जी खूबसूरत शादी की लाइन हो, शादी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले ज़रूर बनते हैं। वो कोई ज़्यादा पुरसकून शादी नहीं होती। ठीक है, ये मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ। आपने किसी भी इंसान की शादी को कामयाब देखना है ना, तो आप उसकी किस्मत की लकीर पे ये जो जुल्म करती है ना राहु लाइनें, उसको देखें। जो दिल की लाइन में डैमेज होती है, दिल की लाइन की हालत को देखें, दिमाग की लाइन की हालत को देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये बंदा अपने रिश्तों से डसा हुआ है, इसको अपने रिश्तों ने
اس کا دل دکھایا ہوا ہے، اس کو برے طریقے سے اپنے ہی پیاروں نے اس کو اچھی طرح تسلی کے ساتھ ڈسا ہوا ہے، تو یہ ہمیں چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ تو فرینڈ، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ کوشش کر رہا ہوں میں کہ ہر دفعہ نا ویڈیو کو زیادہ دلچسپ بناؤں، زیادہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ڈیپلی نالج دوں۔ بھائی جتنا ہی اللہ تعالیٰ نے میرے اندر وہ جو کیپیسٹی رکھی ہے نا نالج کی، وہ میں بڑی ایمانداری کے ساتھ آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ بس جتنا اللہ تعالیٰ نے نالج دی ہے وہ اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں، اور باقی جو اس علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے، کوئی نئی چیز میری ریسرچ میں آتی ہے، تو میں وہ چیزیں بھی آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کرتا ہوں، تاکہ ہر روز جب بھی آپ کو میری ویڈیو ملے تو ہر ویڈیو کے اندر آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے، تاکہ آپ بوریت اور یکسانیت کا شکار نہ ہوں۔ یہ میرا پہلا مقصد ہوتا ہے۔ ویڈیو میں چھوٹی بنانا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، 30-35 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا، اور مجھے خود نہیں بولتے ہوئے پتہ چلتا، اور آپ کو بھی پتہ نہیں چلا ہوگا کہ 35 منٹ ہو گیا مجھے لگاتار بولتے ہوئے، اور میری عادت ہے کہ میں ویڈیو کو وہ روک کے نہیں بناتا کہ میں نے سوچ کے بتانا ہے کہ اس لائن کا کیا مطلب ہے، اس لائن کا کیا نہیں، فی البدیہہ میں نے بولنا ہوتا ہے، اور آپ کے سامنے ہے، اور تھوڑا سا مشکل کام بھی ہے، لیکن اب شکر الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ نان سٹاپ بولتا ہوں، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ لوگ معاف کر دیا کریں، بڑے دل والے ہیں آپ۔ تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے۔ یہ جن لوگوں نے اپنا پام ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، لیکن یاد رکھیں چارجز نہیں ہے، فری ریڈنگ بالکل کوئی نہیں ہے۔ فری ریڈنگ اگر آپ نے سیکھنی ہے تو وہ بھی یہ جو میں نے 40 منٹ کی ویڈیو بنا دی آپ لوگوں کے لیے، تو آپ کو سکھانے کے لیے ہی بنائی ہے نا، اب یہاں بھی علم پالیسی سیکھ سکتے ہیں اگر آپ پے نہیں کر سکتے تو۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، سدا خوش رہیں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے آس پاس سارے لوگوں کا خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں، آسانیاں بانٹیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں لائے گا۔ آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔